محرم کا وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کا پورا سال بے صبری سے انتظار تھا۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا، ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آپ نے محرم سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ آج جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ چند منٹ کی ویڈیو دیکھ کر آج کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں وسعتیں آ جائیں، آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے، پھر اس عمل کے حیران کن فائدے آپ کو ملیں گے۔ محرم جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ محرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروباری مسائل ختم فرمائے، لا علاج بیماریوں کا بہترین علاج عطا فرمایا، جن کے گھروں میں مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، سب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دی۔ محرم بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس میں دیگر عبادات کی طرح 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت ہی بڑی عظمت و احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق کی زندگی نافذ چلی آتی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اس حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورۃ توبہ آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ بھی حرمت اور عظمت والا ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ محرم میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں، کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزہ
रख लिया करो और छोड़ भी दिया करो। ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 उंगलियों से इशारा फरमाया, उनको साथ मिलाया, फिर छोड़ दिया। यानी कि इन महीनों में 3 दिन रोज़े रखो, फिर 3 दिन नागा करो और इसी तरह करते रहो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम में रोज़े रखा करते थे। रजब में रोज़े रखना ममनू या मकरूह नहीं बल्कि रिवायात से साबित है और हुर्मत वाला महीना होने की वजह से मुस्तहब है, इसलिए मुहर्रम के पूरे महीने में किसी भी दिन रोज़ा रखा जा सकता है। अमूमी तौर पर हर दिन के रोज़े की फजीलत है, चुनांचे हर शख्स अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक पूरे महीने में जितने भी चाहे रोज़े रख सकता है। साथ में ये बात भी वाज़ेह है कि मुहर्रम में रोज़े रखना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब अमल है, इसलिए इसको ज़रूरी समझना और इस मामले में हुदूद से तजावुज़ करना भी नाजायज़ है। और साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं उनका शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे तो किसी चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे और अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और यकीन रखें, कभी भी मायूस नहीं होंगे। वो परवरदिगार आपको वहाँ से देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। खुलासा कलाम यह है कि मुहर्रम दूसरे महीनों की तरह अज़मत और बरकत वाला महीना है। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके घर से बलाओं का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए तो मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने तमाम मकासद की नीयत करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ लें। बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नस्लें आबाद हो जाएंगी, हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाएगा। मुहर्रम का महीना जब आता है तो अपने साथ खैर और बरकत लाता है और बहुत से लोग इस महीने को लापरवाही में गुजार देते हैं। बहुत से लोग इसकी अज़मत को लापरवाही में गुजार देते हैं। बदनसीब हैं वो बंदा जो मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले रब को राज़ी ना कर ले। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी है, कर्ज़ की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी है, बेबरकती, बेसकूनी, लड़ाई झगड़ों की परेशानी है, तो मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपके घर पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें छमा छम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। ये वजीफ़ा बहुत छोटा है लेकिन इतना मुजरब है, इतना ताकतवर है कि यह अमल पढ़ने की देर है। आपको खुद समझ नहीं आएगी कि रिज़्क़ और दौलत और कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि जब रब की ज़ात देने पर आती है फिर मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल कर आपके पास आती है। लोग वजीफ़े पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह मैं ये चाहता हूँ ये मिल जाए, वो हाजत पूरी हो जाए। कभी रब से ये भी मांगा है कि ऐ अल्लाह तेरी रज़ा चाहता हूँ, तुझे राज़ी करना चाहता हूँ, तेरी रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरना चाहता हूँ। आज रब को राज़ी करने की नीयत से मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले पहले अगर किसी नामुमकिन हाजत को भी लेकर बैठोगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने से पहले पहले आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत में मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस बाबरकत वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने से पहले पहले जब चाहें, जिस वक्त चाहें ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। सबसे पहले आपने बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। आप कौन सा दरूद पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कर्जदार है, कर्ज से निजात चाहिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहिए, बलाओं से और ज़मीनी आफात से रब की हिफाजत चाहते हैं। आज कुछ भी मांग लो, मकसद की नीयत करते ही फ़ौरन अपनी आँखों को बंद कीजिए, पूरी तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत के साथ यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा कि तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासिद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या हाफिज़ु या सलामु का वजीफ़ा है। अगर आप इस्लामी साल के पहले महीने में रब की हिफाजत चाहते हैं, रब की सलामती चाहते हैं, पूरा साल कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े, कभी दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े, तो या हफीज़ु या सलामु को पढ़ लें। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हफीज़ु या सलाम 1 बार हो गया, या हफीज़ु या सलाम 2 बार हो गया, या हफीज़ु या सलाम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हफीज़ु या सलाम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 15 बार पढ़ना है। 15 बार या हफीज़ पढ़ने से मेरा रब हर तरह की शयातीनी ज़मीनी सफली अमलों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। ये हफीज़ या पढ़ने से हर तरह की मुश्किल परेशानी, रुकावटों और बंदिशों का ख़ात्मा हो जाएगा। और या सलाम पढ़ने से मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगी कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। बदनसीब है वो बंदा जो मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले पहले रब्बे काबा के ये 2 नाम 15 बार ना पढ़ ले। जब आप पहले नंबर पर 15 बार या हाफिज़ या सलाम को पढ़ लें, तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है जो कि दौलत के लिहाज से मुजरब और आजमूदा सूरत है। इस सूरत को दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है। इस सूरत को कामयाबी का राज भी कहा जाता है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़नी है। 33 बार सूरत कौसर पढ़ने से रिस्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। जल्द ही लाखों करोड़ों में खेलोगे। सड़क पर मांगने वाला फ़कीर भी मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देख ले, फ़कीर से बादशाह बन जाएगा। मेरे रब की रहमतों बरकतों से मायूस ना होना। दोस्तों, आप रब से मांग रहे हो, किसी बंदे से नहीं मांग रहे। मेरा रब वो अता फरमाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आपने कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब आप दूसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें, तो अब आपने तीसरी और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर अपने पूरे साल के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। और जिसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। ये वक्त बार बार नहीं आता। ये कबूलियत की घड़ियाँ जब आती हैं तो अपने साथ रहमतें, बरकतें, बहारें लेकर आती हैं। और अगर कोई बंदा मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें जिस तरफ कदम बढ़ाए तो कामयाबी मुक़द्दर हो जाए, आज आखिरी नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़कर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना। आपने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। हर इंसान गुनाहगार है, स्याहकार है, जाने अनजाने में हर किसी से कोई ना कोई गलती कोताही हो जाती है, जिसकी वजह से बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाता है तो फिर वो कुरान करीम की तिलावत कर ले, तस्बीहात पढ़ ले, नवाफिल पढ़ ले, रातों को जाग ले, हत्ता के तहज्जुद भी पढ़ ले, तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए अकाबिरीन ने, सोफिया कराम और औलिया कराम ने जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ा, रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा ज़रूर तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब बंदे की गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। जब आप पर तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह पाक से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह पाक से वो मांगना जो सालों से नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआएं करें, गिड़ गिड़ा कर दुआएं करें, इल्तिजाएं करें। इंशाअल्लाह रब करीम आपके मुक़द्दर को बदल देगा। आप
آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔